मैम स्टार्ट कर दें क्या? वो लोग तो, बाकी लोग तो नहीं आए अभी तक। हेलो जी सर। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर स्टार्ट कर देते हैं। बाकी लोग आ जाएंगे। बाकी लोग आए नहीं अभी तक। ठीक है सर, फिर 5 मिनट वेट करते हैं, सर फिर स्टार्ट 5 मिनट करते बाद। यस सर। बिजला हेलो। जी, क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड मोड पे है। आप प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। 2 लोग हैं जो 10 बजे ज्वाइन करेंगे, मैसेज आया हुआ है पर्सनल विंडो पे। और मालविंदर जी आज ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है। तो ओके मैम। आई गेस आज हमारे पास स्ट्रेंथ कम ही रहने वाली है इनिशियली। अच्छा है ना सर, ज्यादा लोग नहीं होंगे तो ज्यादा कमेंट भी नहीं आएंगे, राइट? एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके मैम। मैम। ऑल द बेस्ट। मैम प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले दो बात जी बोलना था आपको। जी सर। मैम क्लास में मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट है। हैं। अच्छा। मैम थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जी रहा है। सर। सर एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ अभी। हाँ हाँ। सो आई ओके एम मैम। कीपिंग माई सेल्फ म्यूट ताकि आपको डिस्टरबेंस नहीं आए एंड यू कैन स्पीक। ओके मैम। हेलो एवरीबॉडी। माई सेल्फ विजय वर्धन धाल महापात्रा फ्रॉम ओडिशा। I am presenting the neuroscope of my son Surya Kamal Dhal Mahapatra, whose DOB is 5th May 1994. Uh, so his Mulank is 5, Agyank is 6, and Kua is Kua number is 6. Okay, as Mulank is 5, so he is ruled by the planet Mercury or Buddha. The Buddha uh, ruled persons are, the characteristic of persons are, Mercury persons are youthful, charming, energetic, freedom lover, very dynamic, very versatile, quick learners, freedom lovers, very curious to learn new things, very fast thinking, they love to stay mentally stimulated, and also curious explorer. In the negative part of Buddha people are, uh, they are they have overactive mind and scattered focus, and they are very lazy also. Considering his date of birth, the birth chart mm, has 4, 9, 4 energy one time, 9's energy two times, 5's energy two times, and 6 energy two times. So, mm as per the complementary support, his grid is filled. 2 is filled by 5, 3 is filled by 5, and 8 is filled by 8. So his grid is almost filled except number 7. So he, all the planes such as 492, 8, 438, and 5, 456, the joke is completed. In its grid, energy of 4 and 5 and 6 are there, and 9, 5 and 6 are 2 times. Now considering the complemented support, we found that 2 and 3 is complemented as 5 is present in the grid, and 8 is complemented as 4 is present in the grid. So finally we found
The grid is almost full except the energy of Ketu number 7. So now let us analysis the grid. As per the grid analysis, his grid 5 and 6 is the sole number is present in his grid. So he is overblessed. 7 is missing in the grid. So he lacks the interest in spiritualism, uh, disregards for his family members, hindrances in work and studies, do not have family support, more struggle and less result, and mental disturbance also. Now consider the excessive energy. High energy is 2 times there. It shows that he is romantic, young heart, and motivated person and motivated others. Sorry, fixed energy is 2 times. It indicates um, he is worried about his family and insecurity, feels insecurity. Ninth energy is 2 times. It indicates he is intelligent, assertive, and tries to prove his point. Now let us consider the planes and the yogas. The plane 438 is present in his birth chart. That means thought plane is complete in his grid. It indicates sharp memory, intelligence, strong visualization, creative, and good planner. Now his grid completes also the plane 951, that is wheel plane. Wheel plane, as because wheel plane is present there, he has a very strong willpower, quick decision making, strong approach and determination, target and also target oriented, adjustive in any situation. Again, the plane 492 also present in his grid. That is the mental plane. It indicates sharp memory, intelligence, logical, spiritual, and mentally strong. Plane 816 also completes in his grid. Plane 816 is a practical plane. It's called practical plane. So, target set minded, hardworking, and also his Raj Yoga, that means 456 is present in his grid. It indicates progress of parents after his birth, and it shows balance, richness, and stability in his life. Compatibility with other Mulangs. As 5 is high, has compatible with Mulang 1, 3, and 6, and less compatible with Mulang 2 and 4. Considering his Mulang and Bhagyang, his lucky numbers are 1, 5, and 6. Lucky colors are green, white, and blue. Days are Sunday, Wednesday, and Friday. And the unlucky numbers are 3. Only 3 number is unlucky for him. Color is yellow. Day is Thursday. Favorable months for him is May, October, and December. And the challenging months are March and August. Uh, Career guidance. As per Mulang 5 and Bhagyang 6, the most suitable and most suitable career is fitting jobs, luxury, politics, business, and in movies. Coming to medical issues, as Buddha ruled, you will face health issues like nervousness, cough and cold, insomnia, skin disease, and kidney disease. And for his remedy, for his preventance,
prevention, it is suggested to eat green leafy vegetables, apple, salad, almond, beans. There should be adequate sleep also. Considering his Ishtadev, Krishna and Buddha, the incarnation of Krishna, and relationship with his sister and daughter brings for fortune for him. Personally, 2025, his personal year comes in 1. So it brings him opportunity like marriage, promotion, and purchase of new vehicles and new house also. Chance of foreign travel. And this is also happened on his birthday. He has traveled to Malaysia for his office to work also, office work also. A remedy for him, actually in his greed, there is no such struggles for his remedy. But as per high-ruled person, it should be suggested that he should use 4-mukhi Rudrak. He may use money magnet or wallet, promotion and increment card. As Mulang 5 are overactive minded, so to calm them down, he should meditate, chant Buddha Bij Mantra, worship Vishnu and Ganesh also. Okay, sir. Thank you. बहुत बढ़िया सर, आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए इसमें, एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में आपने प्रिडिक्ट किया है। सर मैं वीक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, बहुत अच्छा रहा है सर। सच में आपने सारे टॉपिक्स कवर किए इसमें। जहाँ तक उनका स्टार्टिंग से देखा जाए तो मुलांग बागंग वो भी कवर हुआ है, करियर भी कवर हो गया है, फिर आपने इसमें डाइट का भी कवर किया है, हेल्थ इश्यूज भी कवर किए हैं। तो ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर किया, आपने पर्सनल ईयर का भी एनालाइज किया है, तो सर सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड बहुत बढ़िया था। सर पर्सनल ईयर में जो था सर, सही में भी उसका यही हुआ। उसका बर्थ डेट है 5 में, एग्जैक्टली ऑन 5 में ही हैज अ टूर टू मलेशिया, ऑफिशियल टूर। जी ओके सर, थैंक यू। जी मैम कब तक आ जाएंगे? मैम ट्रैवलिंग में है, तो मैम है हमारे साथ। ओके Vijay ji, it was a wonderful presentation. I must say you covered all aspects, whatever we taught you in class. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने कोई एस्पेक्ट छोड़ा है। आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर अब कुछ छूटा और मैं विजय जी को बोलूंगी यू डिडंट कवर दैट, बट ऐसा नहीं हुआ, इट वाज टू गुड। जस्ट अ सजेशन इन द रेमेडियल पार्ट, एक्सेसिव 5 इज देयर, क्योंकि 5 की एनर्जी जब डबल भी होती है तो हम उसको एक्सेस कंसीडर करते हैं। सो रेमेडी ऑफ एक्सेसिव 5 व्हिच इज बुद्धा यंत्र, that can be suggested in case of your son, right? Okay. And if I missed anything else as an excessive energy, then please let me know. मैम Just 5 double time में? या 5 double time and 6 double time, 9 double time. 9 double time, so that also need to be channelized. So excessive energy of 5 and 9 both will consider and need to be treated with remedies. Okay ma'am. Ma'am, Right? number 7 is And absent. Rudraksha, why we are not going to suggest in this case? Because Mulank is 5 and that is excessive.
So we are not going to go ahead with Rudraksha remedy because the energy, Rudraksha will boost the energy and that is already excessive. So we need to, you know, settle it down with the human touch activation remedies. Okay, ma'am. Ma'am, 66 also there. And 16. 66, ma'am. 66 is not excessive, sir. In One from Bhagyak and one from Kua. case of if 5, 9, if 5, 9 and 7, 1 and rest all the or more than that as an excessive one, right? So Ma'am, here 7, 9 is double, 5 is double, that need to be treated. ma'am, 7 is absent completely. आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था विजय जी, वेल डन. नहीं मैम, अच्छा नहीं तो था गलती. आप ready रहिए. संडे को आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिलेगा जिसका आपने पर्सनल प्रेडिक्शन करना है. इट विल बी वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर. मिल गया मैम मुझे, नेक्स्ट सर ने भेज दिया है. मिल Okay, okay. Then I have gem in my team, I must say. Ma'am, All right, sir. All the one best. thing, ma'am, one information, ma'am, that date of birth is for male or female, or I have to consider for both. मेल सर, मेल सर, Male. जो आपको शेयर किया वो मेल का. ये मैं याद है. Okay, sir. So who is going to be the next one? रश्मिता मैम. Yeah, I'm ready. Hello everyone, myself Dr. Rashmita Sharma Telwal from Assam, Guwahati. I have the privilege to present first numerology report in front of you all. मैंने जो डेट ऑफ बर्थ लिया है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का है. उनका नाम है बोनोजित मेधी. डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1980. उनका मूलांक हो गया 1, भाग्यांक 7, कुआ नंबर 7. जैसे कि इनका मूलांक 1 है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली इनका नेचर किंग जैसा है, लीडरशिप क्वालिटी है. इनका पर्सनैलिटी जो है ये काफी कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, बहुत एम्बिशियस है और इनका विजन बहुत ही डिटरमाइंड है. एनर्जेटिक है, बहुत ही ऑनेस्ट नेचर के है. इनके साथ जो कंपेटेबल मूलांक है वो है मूलांक 2, 4 और 7. 2 इसलिए है जो इनको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, 4 इसलिए है क्योंकि लॉजिकली पार्टनर बन सकते हैं और 7 है इनको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं. इनके साथ जो मूलांक कंपेटेबल नहीं है वो है मूलांक 1, जो इनके साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं. मूलांक 8 है जो पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं. इनके लिए जो कैरियर गाइडेंस होगा वो गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बिजनेस लीडरशिप में जो भी इनको बिजनेस करना है वो कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल लीडरशिप, मैनेजमेंट, डिफेंस, क्रिएटिव आर्ट्स और कल्ट में भी इनका काफी स्कोप है. रिसर्चर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं. इसके अलावा भी अगर वो कोई बिजनेस करना चाहे या इन्वेस्ट करना चाहे वो मेटल में, ग्रेनाइट में, मिनरल्स में कर सकते हैं. इनका जो फेवरेबल मंथ है जनवरी, मार्च, जून और अक्टूबर है. इन महीनों में ये कोई भी शुभ काम स्टार्ट कर सकते हैं. इनके लिए वो उनको सक्सेस मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस 1, 3 और 9 हर महीने के इनके लिए शुभ तारीख है जो ये अच्छे काम कर सकते हैं. जो शुभ इनके लिए नहीं है वो हो गया अगस्त और दिसंबर. इन महीनों में इनको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए. और इनको एवरी ईयर अपने ईयरली न्यूमरोलॉजी रीडिंग करवानी चाहिए क्योंकि ईयरली ट्रांजिट ऑफ सन एंड इक्लिप्स 1 नंबर वालों को काफी इफेक्ट करते हैं. इनके लाइफस्टाइल टिप्स होंगे, हमेशा हम्बल रहना चाहिए इनको, एरोगेंस एकदम नहीं होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए और अकेले नहीं रहना चाहिए.
इनके ग्रिड में मिसिंग नंबर 5 है, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि 5 को ग्रिड का हार्ट माना जाता है। 5 नहीं होने की वजह से इनको स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, अपना घर बनाने में प्रॉब्लम, लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम खुश नहीं रहेंगे, पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, और इनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन की जरूरत होगी। बाकी जो मिसिंग नंबर्स थे वो 4, 2 और 3 थे, लेकिन कंप्लीमेंट है 8 और 7, इसीलिए वो कंप्लीट हो गए हैं। इनके ग्रिड में कुछ एक्सेसिव एनर्जीज भी है, जैसे कि 111। इस वजह से ये बहुत ही टॉकेटिव या फिर पूरे शांत स्वभाव के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। 777 है वेरी डिसअपॉइंटेड, अट्रैक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। 99 है इंटेलिजेंट है, असर्टिव, अपने पॉइंट को प्रूफ करने की कोशिश करते रहेंगे। इनके जो प्लेन्स है थॉट प्लेन जो कंप्लीट है, उसके वजह से ये इंटेलिजेंट है, शार्प मेमोरी है, क्रिएटिव है, सेल्फ कंट्रोल है। विल प्लेन में 5 मिसिंग है, तो कमांडिंग नेचर है, ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, गुड लीडरशिप क्वालिटी है। इनके एक्शन प्लेन भी कंप्लीट है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड है, क्विक अप्रोच है इनका, स्पोर्ट्स पर्सन है और हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। मेंटल प्लेन जो है वो भी कंप्लीट है, तो गुड बिजनेस सेंस है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, लॉजिकल है, स्पिरिचुअल है। इमोशनल प्लेन भी कंप्लीट है, तो लकी है, गुड स्किल्स है इनका, थोड़ा इमोशनल है, दूसरों को अच्छे से समझते हैं। प्रैक्टिकल प्लेन ये काफी प्रैक्टिकल नेचर के, हार्ड वर्किंग है, चीजों को डीपली ऑब्जर्व करते हैं। बट सक्सेस प्लेन में 5 मिसिंग है, जिसके वजह से प्लानिंग में गड़बड़ी हो सकती है, या तो टाइम से एडवांस रहेंगे या फिर टाइम से आउटडेटेड रहेंगे। अभी का मूलांक और भाग्यांक का जो सक्सेस रेट है वो 50% है, जो काफी अच्छा है इनके लिए। कुछ मेडिकल इश्यूज इनको हो सकते हैं, जैसे कि बीपी, हार्ट का इश्यू, आईज में प्रॉब्लम। इनसे बचे रहने के लिए कुछ प्रिवेंशन लेने की जरूरत है, जो इनको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एसिडिक फूड नहीं लेना चाहिए, योगा मेडिटेशन करते रहना चाहिए। इनका जो लकी नंबर है वो है 1356। लकी कलर हो गया इनका ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू। लकी डेज है संडे, थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अनलकी नंबर हो गया 7 और 8। कलर है स्मोकी ब्राउन, डार्क ब्लू और ब्लैक। डेज हो गया मंडे और सैटरडे। इनके जो इष्ट देव है वो या तो राम जी को पूज सकते हैं या फिर सूर्य देव को। ये जितने कभी भी किसी को मिलते हैं तो फिर राम राम, जय श्री राम बोल सकते हैं, या फिर राम राम अगर जपते रहते हैं तो फिर इनके लिए काफी लाभदायक है वो। और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इनका जो पर्सनल ईयर का नंबर है वो है 7, जो इनको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी, मेडिटेशन और रिलीजन में इंटरेस्ट लाएगी, पर कुछ हद तक आलसी भी बना सकते हैं। इनका मनी, कैरियर या सोल नंबर का सेक्टर में प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि 5 मिसिंग है। इसको बैलेंस करने के लिए इनको रेमेडी करना चाहिए 5 के लिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर यूज करना, आसपास ग्रीन कलर को रखना। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन क्लोथ्स, ग्रीन पेन रखना चाहिए, ग्रीन हैंकी बैग में रखना चाहिए, पर उसको यूज नहीं करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, या फिर बेडशीट्स, कर्टेन्स, कुछ भी ग्रीन में वो अपने आसपास रख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि इनका 7 मल्टीपल स्टैंड है, तो डेली इनको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो सकता है 7 के लिए, तो इसके लिए वो अपना अवेयरनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। उससे वो परफ्यूम्स, इतर यूज कर सकते हैं। फ्राइडे को व्हाइट चीजें दान करना, जैसे कि राइस, शुगर, मिल्क, या एक गोल्डन वॉच पहन सकते हैं गोल्डन स्ट्रैप के साथ। इनके लिए कुछ रेमेडीज होंगे, जैसे तो एक वालों को अगर रुद्राक्ष का रेमेडी दिया जाए तो फिर 1 मुखी सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, 12 मुखी तो रिमूव ओल्ड सिंस और ओवर थिंकिंग के लिए। यंत्र में तो इनको काफी सारे ही चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव नंबर 111 है, 77 है, 99 है, पर मेरे हिसाब से इनको अभी 5 को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरत है, वही मेन है। तो उनको बुध का यंत्र देना बहुत जरूरत है। थैंक यू।
मैम आप कुछ कहना चाहते हो? सर मेरा नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, तो ओके ठीक है। मुझे एक बार रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। ओके ठीक है ठीक है। तो मैम बहुत बढ़िया था। फुल ऑन कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव वे में आपने लिया है सब कुछ। जस्ट दो तीन पॉइंट्स हैं। जैसे आपने कहा एक एक्सेसिव है, नंबर वन। ठीक है, तो उस केस में हम जल्द चढ़ाना नहीं नहीं करेंगे। बोलते। हाँ ठीक है, तो वो एक आपको करेक्शन करना है। एंड जैसे आपने कहा है, अभी के लिए आपको फाइव को चैनलाइज करने की जरूरत है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। और फिर उसके बाद में जिस चीज की, वो तो आपने कवर किया है कि जो प्रॉब्लम दे रहा है उस पर हम कवर करते हैं। बट देखा जाए तो इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट और लगा है कि जब हम फेवरेबल डेज निकालते हैं, तो आपने वो मूलांक के अकॉर्डिंग मंथ के डेज भी आपने मेंशन किए हैं। लाइक इस मंथ में ये डेट्स होंगी, आप इसको फेवरेबल में कंसिडर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो ओवरऑल सब कुछ आपने कवर किया है एंड बहुत बढ़िया था प्रेजेंटेशन, थैंक सच में। थैंक बाकी लोग भी आपके पॉइंट्स बता सकते हो। विजय सर कैसा लगा? सर आप म्यूट हो। सर वेरी फाइन। अ, मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए। वेल डन मैम। अंजना सो मैम। मेरी बारी आ गई है, विनायक जी। हाँ मैम। नहीं मैम, आप ओके, वेट कीजिए। सो रश्मिता जी, आपका जुपिटर एक्टिव है, वो क्लियर कट विजिबल था आपकी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि टीचर क्लास लेता है उस तरह की प्रेजेंटेशन थी। दो मेरा ऑन ऑफ मोड था, तो मैं पूरी डिटेल में नहीं उसको सुन पाई क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। बट कॉन्फिडेंस लेवल वाज क्वाइट हाई। ऐसा था नहीं कि यू नीड टू लाइक बूस्ट योरसेल्फ, इट इज दैट as inbuilt quality of you that is clearly visible in your presentation. एंड यस, विनायक सर ने जैसे बोला कि हम एक टाइम पे एक रेमेडी कर रहे हैं और 5 की रेमेडी सबसे पहले उसको अलाइन करना जरूरी है। एक्सेसिव 1 के केस में साइड बाय साइड आप क्या कर सकते हो, आप एडवाइस दे सकते हो कि दे शुड नॉट टेक एनी रेड कलर गिफ्ट्स फ्रॉम एनीवन, और दे सकते हैं लेकिन लेना नहीं है। फिर रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि अभी 5 की रेमेडी है तो हम अवॉइड कर सकते हैं बट उसकी रेमेडी नहीं स्टार्ट कर सकते। तो अवॉइड करना उसको और इनहेंस नहीं होने से बचाएगा फॉर द टाइम बीइंग, राइट? Rest I get. I also need to check the recording now. That was too good. thank you, ma'am. बहुत अच्छा किया मैम। पूरा क्लियर था, जो जो भी शब्द आप बोल रहे थे ना, पूरा क्लियर था। मैंने साथ साथ मैच किया, जो जो लिखा हुआ है, जो मैम ने बताया, जो जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रिडिक्शन करनी है, वो सारे पॉइंट्स लिए आपने। वेरी नाइस, Thank you. वेरी गुड। विराट सर। Great, Rashmita विराट ma'am. सर। Thank you. विराट सर, आपका रेडियो। यस सर, यस सर।
सर रेडी है? इसको करना है, मैं कर सकता हूँ। हु इज गोइंग टू प्रेजेंट? हाँ सर, आपको ही करना है, मैं? आपका ही अच्छा अच्छा, नंबर नहीं है ठीक। सर। ओके गुड। हाँ। ठीक, एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैंने मेरे वाइफ का ही कोई बात। प्रेडिक्शन करने की कोशिश किया है ना? तो ओके। हाँ, तो उनके हिसाब से उनका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली 9/2/1981 है, फिर बीइंग फीमेल। तो उनका मूलांक जो है वो 9 है, भाग्यांक जो आ रहा है उनका 3 है, और कुआ नंबर जो है वो 5 आ रहा है। उनके ग्रिड में जो मिसिंग नंबर्स दिख रहे हैं वो 4, 6 और 7 है। अब जैसे कि मूलांक नंबर 9 है, तो ये दीज आर द वॉरियर है, और ये जो लीडर है बेसिकली, और सामने वाले को देने की इनकी बहुत ये रहती है, गिवर है। दे बोल्ड और एनर्जेटिक होते हैं ये लोग। फाइट में इन्हें किसी दूसरे के इसमें अच्छे कॉज के लिए फाइट करना इनकी खासियत रहती है। काफी सारा स्ट्रगल और इनके लाइफ में रहता है, अर्ली लाइफ में भी इनका स्ट्रगल रहता है थोड़ा सा। दे लर्न हाउ टू टर्न, पेन को पावर में कैसे टर्न करने का, ये अच्छे तरह से जानते हैं लोग नव मूलांक वाले। थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, और अपने दिल से लोगों की हेल्प करना, हार्ट ऑफ सर्विस इनका रहता है। ड्रिवन बाय गोल्स है, जो वो चालू करते हैं, जो चीज वो काम चालू करते हैं वो उसको फिनिश करना, उसको पूरा करना इनकी आदत रहती है। विलिंग टू फाइट फॉर अदर्स एज ए सेड। तो इनके लिए कंफर्टेबल नंबर्स जो है मूलांक 9 के हिसाब से ये 1, 2, 6 और 7 है, और थोड़ा लेस कंफर्टेबल जो है वो 4 और 8 आते हैं। करियर के हिसाब से इनके देखा जाए तो डिफेंस क्षेत्र में है, या फिर स्पोर्ट्स में है, मेडिकल फील्ड्स में है, या फिर सोशल एक्टिविज्म, या फिर एनजीओज में जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में लीड कर सकते हैं, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल रोल किसी लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, संभालने के लिए, काउंसलिंग के हिसाब से ये काम कर सकते हैं। फेवरेबल इनका जो टाइम है उसके हिसाब से मंथ्स जो आते हैं वो मार्च, जून और अक्टूबर आते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम्स जो है इनका मई और दिसंबर में होता है। लाइफस्टाइल टिप्स अगर देखें तो इन्होंने थोड़ा सा एक्सेसिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए योगा और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मार्स का बीज मंत्र जो है वो जपना चाहिए, खास करके मंगलवार के दिन अगर ये करते, ट्यूसडे के दिन। और मार्स की एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए इनको रेड फ्रूट्स जो होते हैं, एप्पल है, या फिर पोमोग्रेनेट है, या फिर बीटरूट्स है, इनका सेवन करना चाहिए। अ, भगवान हनुमान जी का प्रार्थना करना चाहिए रेगुलरली। लोगों को हेल्प करना, ये इनकी आदत तो होती है। क्लीन कर्मा जो है, लोगों को दूसरे कोई भी कार्य में अपने दिल से उनकी पूरी मदद करना, ये भी इन्होंने करना चाहिए। अपनी एक्शन और रेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश इन्होंने करनी चाहिए अपने इसमें। मिसिंग नंबर अगर जो है उनके 4, 6 और 7 अगर देखे, तो 4 के हिसाब से लैक ऑफ डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशंस में। थोड़े से क्लमजी हैंड्स है, कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, इंट्यूशन की भी थोड़ी सी कमी होती है, और स्ट्रगल करना पड़ता है छोटे छोटे चीजों में भी इनको। डायरेक्शन लेस होते हैं थोड़े से, और चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें, थिंग्स आर फॉरगटन। बिजनेस में कुछ लॉस होने के चांसेस है। हेल्थ प्रॉब्लम टिपिकली जो पेट के प्रॉब्लम से उसमें इनको गुजरना पड़ता है बेसिक से। 6 नंबर के हिसाब से अगर मिसिंग जो 6 नंबर है उसके हिसाब से देखे तो फैमिली में पुअर बॉन्डिंग होता है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा वीक सेक्शन है, मैरिजल लाइफ टफ है, लैक ऑफ मनी और लग्जरी लाइफ की कमी थोड़ी सी है, गुड फ्रेंड्स, शॉर्टेज ऑफ गुड फ्रेंड्स है, फैमिली सपोर्ट इनको सही समय पे नहीं मिल पाता है, और लव रिलेशंस में भी कुछ चैलेंजेस रहते हैं इनके। मिसिंग नंबर 7 के हिसाब से अगर देखें तो स्पिरिचुअलिज्म में ये बता रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिज्म में इनका थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान जरा कम होता है।
दूसरों के फीलिंग्स को जल्दी से, इमोशंस को समझ नहीं पाते। फैमिली सपोर्ट नहीं है साथ के हिसाब से भी वो आता है नॉर्मली। और थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं। एक्सेसिव एनर्जी इनके ग्रिड में है डबल वन और डबल नाइन। तो डबल वन में तो अच्छे कम्युनिकेशन है और जल्दी से दोस्त भी अच्छे बना लेते हैं, इजीली फ्रेंड मेकिंग होता है। नाइन के एनर्जी में थोड़ा सा असर्टिव और अपनी ही चीज रखने में थोड़ा सा असर्टिव होते हैं। अपनी पॉइंट प्रूव करने के लिए थोड़ी सी इनकी आदत रहती है। तो थोड़ा सा मैं जानता हूँ इसलिए भी मैं मिसिंग नंबर के हिसाब से, बाकी इनकी तो कंपैटिबिलिटी जो होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट है, उसके हिसाब से इनका प्लेन, इनके तो ग्रेड पूरी हो रही है सभी। कोई मिसिंग नंबर कॉम्प्लीमेंट्री हिसाब से नहीं आ रहा है। बट थोड़ा सा मैं पर्सनली जानता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर चार की रेमेडी 4 नंबर के लिए होनी चाहिए, जो मेजर प्रॉब्लम्स इनके फेस कर रही है। प्लेन्स जैसे मैंने बताया, तो जैसे पूरे सभी प्लेन पूरे ही है, क्योंकि कोई ग्रिड में कोई कमी है नहीं अगर सपोर्टिंग कर रहे हैं तो शार्प मेमोरी उसके हिसाब से तो ये सब कुछ चीजें अच्छी है। राजयोग भी है और सिल्वर योग भी दिख रहा है। तो प्लेन सभी पूरे हैं। अ, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन जो सक्सेस रेट आ रहा है वो 50% है। तो शायद हो सकता है थोड़ा ट्रीटमेंट कुछ इधर करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल इश्यूज और प्रिवेंशन के हिसाब से इनको मूलांक 9 के हिसाब से हाई बीपी की तकलीफ हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर शॉर्ट टेम्पर और थोड़ा सा ओवर थिंकर भी का प्रॉब्लम इनको आ सकती है। तो ये प्रिवेंशन के लिए इनको सजेस्ट किया जा सकता है कि थोड़ा सा गार्लिक, ओनियन और जिंजर ये यूज करें। ग्रीन टी भी लिए, कोकोनट्स, सिंपल फूड ये सेवन करें, रिच फूड को अवॉइड करें, हेवी डाइट्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें। करियर गाइडेंस तो हमने बात किया, बट मूलांक 7 और 6 के हिसाब से भी इनको हीलिंग, सोशल वर्क जो एनजीओ उसमें उसमें भी बताया था। तो कई सारी चीजें यहाँ पे कॉमन आता है। राइटर ये बन सकते हैं, ऑयल सेक्टर में या फिर सुपरमार्केट में भी इनका काम हो सकता है। लकी और अनलकी नंबर्स मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से इनके आते हैं 1 और 3, जो लकी नंबर्स है। और जो अनलकी नंबर्स है वो 2, 4 और 6 आते हैं। लकी कलर्स है ऑरेंज, रेड और येलो। तो ये कैसे इस्तेमाल करना है तो हमने एक्चुअली देखा है, बट ड्रेस पहन सकते हैं, कुछ चीजें साथ में रख सकते हैं। लकी डेज इनको संडेज और थर्सडे है। अनलकी नंबर्स में 2, 4 और 6। और अनलकी कलर जो है वो व्हाइट है, ग्रे है, ग्रेइश, ब्लैक और ब्लू है। अनलकी डेज में मंडे और फ्राइडे आता है। इष्ट देवता तो हमने बताया कि हनुमान जी की इन्होंने प्रार्थना करनी चाहिए रेगुलरली। और कोई भी किसी के भी मंगल कार्य में, किसी के भी इसमें पूरे दिल से अपने मदद करनी चाहिए। रेमेडीज अगर 9 मूलांक के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 मुखी रुद्राक्ष का क्यूरिंग फॉर पास कर्मा एंड मंगल दोषारित करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष अगर मंगल दोष है और शनि दोष को दोनों को इसको करना है, क्योर करना है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। बाकी यंत्र तो बहुत सारे हैं, बट 4 के ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा काम कर सकते हैं। मंगल यंत्र जो है एंगर इश्यूज और डेप्थ फ्री के लिए, ये भी थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट। अब मैं थोड़ा सा जानता हूँ, एक्चुअली मैंने ये प्रेजेंट किया है जो हमारे जो जो सिखाया उसके हिसाब से। बट कई सारी चीजें जो है वो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन लग रही है, जो चीजें बताई गई है वो उस तरीके से नहीं है, तो वो क्यों है वो थोड़ा समझना है बाकी। मैम आप बताइए। यू कैन रेज योर क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपका क्वेरी सॉल्व करते हैं। हाँ नहीं, जैसे अभी जो चालू करते हैं वो फिनिश करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है सेम्स दैट दोज आर मिसिंग। ऐसा लगता है कि अ, बीइंग, आई नो ये इट होता है पर्सनली। इस केस में। हाँ इस केस में ये होता है कि कुछ भी नई चीज स्टार्ट करना ना बहुत ज्यादा जुनून देता है इनको, एक किक जी। देता है। तो ये हाँ उसमें जुट जाते हैं, फिर कुछ और नया मिलता है तो ये उस पे जुट जाते हैं, लाइक जिस चीज से किक राइट, मिले। तो ये करेक्ट, प्रोग्रेसिव वे में नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते जाते हैं और पीछे वाले को राइट। फिनिश नहीं कर पाते। सो जी। दे आर गुड स्टार्टअप बट बैड फिनिशर, पीछे रह जाती है चीजें कई बार। बट दूसरे जैसे अभी वो सिल्वर योग और राजयोग जो देखा जाए तो उसके हिसाब से कई सारी चीजें है।
but Silver lot of things are golden uh, Rajyog is also there, right? yeah, golden Gold Rajyog and is also silver. there. वो क्या होता है? That is basically the input plane and the output plane, success plane one Hmm. and two. So when you have 4, 5, and 6, that is what kind of input you are putting in regard of anything. जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसके लिए कैसा इनपुट आपकी तरफ से जा रहा है, राइट? जी और जो 2, 5, 8 का प्लेन है, दैट इज योर आउटपुट प्लेन, कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, वो ट्रू उससे रिलेटेड है, राइट? जी एज सच राजयोग विराज जी, ऑनेस्टली बताऊं ना, ये जो 4, 5, 6 का राजयोग है, या 2, 8, चार 5 एक्चुअली का तो राजयोग है, कॉम्प्लीमेंट्री बी गेटिंग दैट इन रिक्शा ड्राइवर्स ऑल्सो, या राइट? नहीं, लेकिन चार जो है वो बिकॉज ऑफ चार तो मिसिंग है, वो 8 की वजह से 8 की वजह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एनर्जेटिक, राइट? दूसरा दूसरा अगर देखा जाए तो मेरे इसमें भी 4 मिसिंग है, उनके इसमें भी 4 मिसिंग है। हम्म। बट वो इनके केस में तो एक्टिव हो गया ना, क्योंकि हो 8 गया, की कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट उसको मिल गई है। मिल गई है। आपके केस में भी वो मिसिंग नहीं है। हमने तो अच्छी तरह से बात की थी कि देर आर सर्टन थिंग्स जो बाय डिफॉल्ट पीछे से ही होती आ रही हैं। अगर हाँ आपको स्ट्रीट डॉग को फीड करना पसंद है, तो जी डेफिनेटली वो चीजें, कई बार क्या होता है, बचपन से ही हमारे पेरेंट्स इस चीज की ओर हमें लेके जाते हैं अननोइंगली। जी द फैक्ट दैट ये ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा, हमारी लाइफ की जी बेटरमेंट के लिए, जी जी राइट? तो आपके साथ भी यही हुआ है। तो या राजयोग का कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू आर पुटिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ राइट रिजल्ट यू आर गेटिंग एज एन एंड प्रोडक्ट। करेक्ट और इसके अलावा एक चीज और थी कि द वे यू वर, आई वाज ट्रैवलिंग, या तो आई आई एक्चुअली द आई वाज मोमेंट आल्सो आई ट्रैवलिंग। unlock हाँ my house, I turn on my laptop because I kept it outside कि मैं इसको लेके बाद में अंदर चली जाऊं। जी तो दैट टाइम व्हेन आई जॉइंड, मुझे ऐसे लगा कोई वो नहीं होते, एक पंडित जी, ज्योतिषी जी, जो ये बता रहे हैं देखो रेमेडी में तो रुद्राक्ष भी हो सकता है, तो रुद्राक्ष की बात करें तो ये पहन सकते हो, ऐसे और भी रेमेडी हैं। तो इट वाज गिविंग मी लाइक कि वेरी प्रोफेशनल पर्सन इज गिविंग द प्रिडिक्शन। सो वेल डन विराज जी। मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा अभी जल्दी में आया हूँ, ट्रैवलिंग करके अभी जस्ट पहुंचा हूँ। I know that you were, I या got to know news of each and every person, कौन late join कर रहा है, राइट कौन जल्दी join कर रहा है, because me and Vinayak are like continuously on phone, या and so that was a nice presentation, though I also need to go through the recording because initial I missed ओके एंड अभिजीत जी की भी प्रेजेंटेशन चैट में आ गई है, बट क्योंकि मैं तब बिल्कुल पहुंचने वाली थी घर पे, तो मुझे ये लगा कि मैं बाद में घर पहुंच के आराम से ओपन करूंगी उसको लैपटॉप से। और फिर वी नीड वन वॉलेंटियर। ओ, हमें क्यों जरूरत है अभिजीत जी, इट्स योर चॉइस टू सेलेक्ट वन वॉलेंटियर फॉर योर सेल्फ, जो आपकी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो आप बता सकते हैं सर। विराट जी, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, चल। अभिजीत जी, सेलेक्ट वन। अगर हम में से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो बेटर चॉइस के लिए फिर संडे को। ये सारे इसके क्यों फैन होते जा रहे हैं विनी के? विनायक जी, तो मैं आपको भेजूं? विनायक जी, आपको मिली है अभिजीत जी की, या मुझे भेजना है आपको? उनका मैसेज आ रहा है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मैंने देखा। ओके, wanna know how हाँ। विनायक जी thinks? अरे विनायक बहुत परफेक्ट बच्चा है। इस पे तो ब्लाइंड फेथ कर सकती हूँ मैं।
विराट जी, आप अपने कॉम्प्लीमेंट्स चैट में पढ़ सकते हैं, हार्ट इमोजीज भेज सकते हैं। एवरीबडी इज प्रेजिंग यू अ लॉट। ओह, टफ कंपटीशन, हाँ विनायक। आई गेस दैट विनायक जी को कुछ वक्त चाहिए, राइट विनायक जी, जस्ट टू रीड इट। प्रीति नो जी, मैम, अभी हाँ रीड कर रहा प्रीति जी की। तो फिर यहाँ तो सबकी हो चुकी है प्रेजेंटेशन, राइट। केतकी जी बोल रहे थे 10 बजे तक ज्वाइन करेंगे, पॉसिबल नहीं हुआ होगा उनका। सो मीनवाइल जब तक विनायक जी टाइम ले रहे हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई डाउट है, क्योंकि अब क्या है, डाउट अब आएंगे क्योंकि 4 लोगों की प्रिडिक्शन आप कर रहे हो, 4 लोगों का ग्रिड रीड अब कंप्लीट हुआ होगा, आई होप सो, राइट। साथ साथ में थोड़ा सा स्लो हो रहा था। So if you have any query, any doubt in regard of whatever we have covered, in case, important announcement to make, as we promised that you can do repeat it multiple times with us. So those who are interested to join the next session, आप संडे को हम मिल रहे हैं दोबारा से, हमारी वो है इंटरचेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ वाली एक्टिविटी। तो उसके साथ सर्टिफिकेशन सेरेमनी भी है, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग भी रहेगा सेशन हमारा। संडे को 8 बजे शुरू होगा ये सेशन, बिकॉज इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स टू कम। और उसी दिन वी आर गोइंग टू सेंड यू मैसेज, जो भी इंटरेस्टेड हो अगला बैच ज्वाइन करना है, जिनको लगता है कि लर्निंग अभी और पॉलिशिंग की जरूरत है, दे कैन ज्वाइन, मोस्ट वेलकम। सो जस्ट हम आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा एंड वी आर गोइंग टू ऐड यू इन द ग्रुप। थोड़ा रेमेडीज का सेक्शन ही मैम थोड़ा सा कैसे करना है ना, जी जी। समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर अपने अगले बैच ये में कुलकर्णी जी, जैसे आपको वक्त जी मिले अपने श्योर। बिजी शेड्यूल से। हाँ, मैं कल से आपको इतनी कॉल की है ना, मुझे इतनी कॉल तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं की है। नहीं सॉरी मैम, एक्चुअली क्या है, मैं जैसे बताया ना कि एक नया कंपनी का काम लिया है, तो इट वाज अ जर्मन कंपनी एंड वाज बिजी फॉर लास्ट 2-3 डेज विद देम। हम्म। सॉरी तो फॉर इट्स दैट। फाइन, वो तो लेग पुलिंग तो देखो मेरा राइट है। जी रजनी जी। मैम एक बात जाननी थी कि जैसे आपने बताया था कि जिसके ग्रेड में 777 आ रहा है उसको 4 और 8 की रेमेडीज नहीं देनी है। 777 आ रहा है तो 4 की रेमेडीज नहीं देनी है। राहु केतु एसोसिएटेड है। अच्छा, राहु और केतु है। हाँ, और अगर 8 आ रहा है? राहु केतु एसोसिएटेड है ना, तो अगर राहु की रेमेडी दे रहे हो तो पहले केतु को देखना पड़ेगा। अगर वो एक्सेसिव है तो नहीं देंगे ना रेमेडी। एक ही तो रेमेडी है दोनों की, पर्सन भी तो एक ही है, हेड और बॉडी तो है, राइट। मैम मैं ना एक बना रही थी वो ग्रेड, इसमें हेल्दी सेक्टर में मूलांक 9 एंड भाग्यांक 6 इज ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर हेल्थ आ रहा है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बहुत ज्यादा, बट उसके जैसे ग्रिड ये प्रिडिक्शन में हेल्दी आ रहा है पूरा, उसका मूलांक 9 एंड भाग्यांक 6 इज ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर हेल्थ आ रहा है। हम्म। पर्सनल एयर में उसमें थोड़ा सा है, आ रखा है उसका डाउट। हम्म। हाँ उसमें ये जैसे उसके उसका क्योंकि भाग्यांक 6 है,
उसमें बता रखा है जिसका पर्सनल ईयर उसका 3 आया है, भाग्यांक 6 के तो अकॉर्डिंग वो उसके एंटी हेल्थ होगा इश्यूज इस साल। हाँ जी, वो नेगेटिव रिजल्ट देता है भाग्यांक। हाँ जी, वैसे 3 पॉजिटिव ईयर होता है, लेकिन भाग्यांक 6 के केस में या मूलांक 6 के केस में एंटी रिजल्ट देता है, तो उस टाइम में हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत है ना ये उसकी वजह चेक से। करो कि उसका इसी पर्सनल ईयर से हेल्थ इशू आ रहा है क्या, वैसे भी है, क्योंकि मंथ कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ हाँ, डेट ऑफ बर्थ में मंथ कौन सा है? 12 दिसंबर, दिसंबर। 18 तो दिसंबर। और आपने पर्सनली, एक मिनट, मुझे डेट बताना कंप्लीट। 18 18 सितंबर। दिसंबर 1983। अरे 18 है ना, दैट इज द रीजन मैम। ये 18 डेट ही पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो भोगने होते हैं। इस जन्म के ग्रिड में कुछ नहीं मिलेगा। 18 इज अ कार्मिक डेट। तो ये इस डेट में क्या होता है कि पिछले जन्म में अपनी पावर का मिसयूज किया होता है, तो इस जन्म में एक कार्मिक डेट मिलती है इनको। ये कार्मिक डेट है जिसमें क्या होगा, इस जन्म में कितना पॉजिटिव भी कर लेंगे ना, तो भी कर्म ये पिछले वाले ही काटने आएंगे। तो अब ये होगा कि इनको हेल्थ इश्यूज छोड़ो, इनको एक्चुअली पावरफुल लोग भी ना परेशान करेंगे। वो वाले केसेस होते हैं कि हर तरफ से परेशान होते हैं। हाँ जी, वही ना, जब मैंने इनका हेल्दी सेक्टर देखा तो उसमें जैसे कॉम्बिनेशन मूलांक एंड भाग्यांक के जो भी हेल्दी, उनमें तो इसका बहुत अच्छा आ रखा है, बहुत हम्म। हेल्दी है, बट एक्चुअली नहीं है ना। वो सक्सेस रेट है, जो चार्ट शेयर किए वो सक्सेस रेट का है। हेल्दी सेक्टर भी था, हाउ टू डिटेक्ट मनी थ्रू अच्छा, डेट ऑफ वो बर्थ। स्ट्रक्चर में इनके पास 5 और 6 दोनों है। इनके पास 5 नहीं है, 4 और 5 दोनों नहीं है। 5 नहीं है तो जिंदगी की गड़बड़ तो वहीं से ही दिख जाती है ना। हाँ जी, 4 हाँ नहीं है 5। तो 8 का सपोर्ट मिल गया, बट 5 नहीं है उसको, कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो लाइफ में बैलेंस तो बन ही नहीं रहा है। जैसे मैम इनके 5 नहीं है, जो हमने इनके प्लेन बनाने हैं, जो हम्म। 5 वाले को ऐड नहीं करना, वो तो मिस ही छोड़ना है ना, वो तो अगला 5 वाले को सिचुएशन। छोड़ के बाकी दो के वो 66% प्लेन एक्टिव होगा इनका, हाँ जी, और उसके एट्रीब्यूट्स फिर अलग हो जाएंगे। हाँ जी, वो जैसे अलग हो गए, वैसे सिचुएशन थर्ड हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग होगी ना वो। 5 वाले को काउंट ही नहीं करना फिर मैम, जी जी। विजय जिसमें। जी किसका टाइम पूछ रहे हो, जो अपना संडे स्पेशल क्लास का? 8 बजे रख लें विजय जी? नहीं मैम, जो दूसरा बैच होगा आपका। अच्छा, उसका टाइम तो फिर अगला बैच ही डिसाइड करेगा सर। ओके ओके मैम, ओके। तो वो तो पता नहीं है। आप बताओ संडे आपको क्या सूटेबल टाइम लगता है? 9:30। 9:30? तो ऑप्शन तो हम यही दे रहे हैं कि 7 और 9:30 में से सेलेक्ट करो, क्योंकि 8 तो हमारा ऑलरेडी बिजी रहता है। देखो क्या करते हैं, एक एक दो लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि आफ्टरनून बैच एक बनाएं, फीमेल्स की स्पेशली। तो देखते हैं मैम कैसे रहते नहीं। मैम एक्चुअली क्या होता है कि आई बिलोंग टू उड़ीसा। इन उड़ीसा एक्चुअली हिंदी टकिंग इज थोड़ा, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया। नहीं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया विजय जी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो खिचड़ी तो हम सब भी पकाते हैं, हमें कौन सा प्रॉपर हिंदी आता है? अब हमारा तो प्रॉब्लम ये है, इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं, हिंदी भी प्रॉपर नहीं, बस मिलके जुगाड़ से काम चल जाता है। ओके विराट जी। मैम मुझे जी वो था, रश्मिता। मैम एक चार्ट में जैसे कि 4 डबल बार है लेकिन 7 नहीं है, तो इस पे जब रेमेडी दिया जाएगा तो नहीं नहीं, कोई रेमेडी नहीं देंगे। राहु राहु केतु को बख्श दो, इसकी रेमेडी मत दो, हाँ वही क्योंकि मतलब फिर पूछना था। दूसरी एनर्जी पे इम्पैक्ट होगा ना। हाँ। वही अभी रजनी जी के साथ डिस्कशन हुआ था कि राहु की 2 तो केतु को चेक कर लो डबल ना हो, केतु की 2 तो राहु को चेक कर लो डबल नहीं हो। केतु डबल तो फिर प्रॉब्लम वैसे ही ज्यादा है। वही विनायक जी। मतलब एक कंफ्यूजन था। मैम, जी तो मैम। आपने दोबारा अभी तो कुछ बोला था कि अपना अगर 777 की एनर्जी है तो 8 के लिए भी कुछ कहा था। राहु केतु आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि ये एक ही
हेड और बॉडी है वो हाँ जी, वो तो समझ आ तो गया। अगर 777 है और मिसिंग 6 है तो वो हेल्थ पे अटैक डालता है, ये बोला था पहले एक बार। और मैम अपना राहु केतु और शनि, ये एक ही है, मतलब नहीं कि नहीं मिक्स नहीं, होते हैं? ना ना, राहु राहु और केतु केतु जैसे अपने डे अलग अटैच अलग होते लिखवाया हैं, ना। लेकिन एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे राहु केतु के भी। लेकिन जब हम रेमेडी देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, तब हमें दोनों को देखना, एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे, राहु के अपने होंगे, केतु के अपने होंगे। तो इनका दिन शनिवार, तीनों का अलग अलग दिन होएगा? अलग अलग ही होता है, राहु केतु का एक ही दिन है, लेकिन उसका अलग है। उसका मंडे तो और शनि का सैटरडे है। तो शनि है। विनायक जी अगर रेडी हो तो प्रेजेंटेशन दे दें आप अब बाकी जी सब मैम। ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर बन के अच्छे से जजमेंट देनी है, और सबसे पहले जजमेंट अभिजीत जी देंगे, और स्ट्रिक्ट टीचर बन के देंगे अभिजीत मैम जी। फेवरेट फेवरेट नहीं चलेगा यहाँ पे कोई। मैम चलिए, इतना डिटेल प्रिडिक्शन किया है होगा सच में। होगा, वो 2 7 वाले हैं विनायक जी, वी नो हिज एनर्जीज। अ, जी मैम। तो हेलो एवरीवन, जैसे मेरे पास अभिजीत सर का ग्रेड आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभिजीत सर का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो अभिजीत सर की डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1977। तो सेकेंड अगस्त 1977। तो अभिजीत सर रूल करते हैं चंद्रमा से। एंड चंद्रमा के बारे में हमें पता है, चंद्रमा कामिंग, नर्चरिंग, अर्निंग जैसा उनका ऑरा होगा। अभिजीत सर की पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं बताऊंगा, तो उनकी पर्सनालिटी सेंसिटिव पर्सन होंगे, डिप्लोमेटिक होंगे, पीस लविंग पर्सन होंगे, क्रिएटिव, सपोर्टिव, इस तरह की उनकी पर्सनालिटी है। अभिजीत सर को अगर करियर गाइडेंस देना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो थेरेपी, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, राइटर, पोएट, आर्टिस्ट, इन सारी फील्ड्स में वो जा सकते हैं, जहां पर अगर वो जाएंगे तो उनको सक्सेस मिलने का रेट बढ़ जाएगा, तो वो इस फील्ड में सक्सेसफुल बन जाएंगे। कॉम्पेटिबिलिटी की बात करूंगा, तो मूलांक 1, मूलांक 3 एंड मूलांक 6 वाले पर्सन के साथ इनकी अच्छी तरीके से बनेंगे। ये इनके लिए बेस्ट पर्सन हो सकते हैं, ये इनके लिए बेस्ट सपोर्टिव पर्सन हो सकते हैं, ये इनके फेवर में रहेंगे। एंड अगर मैं इनको अनलकी या फिर अनकॉम्पेटिबल पर्सन के बारे में बताऊंगा, तो मूलांक 5 एंड मूलांक 8 वाले जो पर्सन होंगे, वो इनके लिए फेवरेबल कंसिडर नहीं होते। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मूलांक 5 एंड मूलांक 8 वालों से थोड़ी दूरी बना के रखिए। तो तो जैसे मैं आपके ग्रेड में देख पा रहा हूँ सर, आपके ग्रेड में 7 की एक्सेसिव एनर्जीज है। इसके इम्पैक्ट अगर देखा जाए, तो जैसा हमें पता है आप मैरिड हो, तो वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो 7 की एक्सेसिव एनर्जी में आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, आप उस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हो, आप स्पिरिचुअल चीजें करते होंगे, जिससे आप वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो ऑरा होता है वो अपने आप में समाते हो। नेक्स्ट अगर मैं सक्सेस रेशियो की बात करूंगा, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आप जो है किस करियर लाइन में जा सकते हो। एंड अगर मैं मूलांक एंड भाग्यांक का कॉम्बिनेशन करूंगा, तो आपका जो सक्सेस रेट है 50% है। तो जो भी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, तो आप अगर उस फील्ड में जाते हो, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो 50% है। एंड इसको हम अच्छा कंसिडर करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको कुछ कलर्स एंड डेज सजेस्ट करना चाहूंगा, तो येलो एंड ग्रीन कलर आपके लिए फेवरेबल कलर्स रहेंगे। इस कलर्स को आप आपके लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। जैसे मान लो आप अभी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू को जाते टाइम आप अगर ये कलर आपकी लाइफ में ऐड करते हो, तो क्या होता है, आपको वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, बट वो पॉजिटिव माइंडसेट आ जाएगा, जिसकी जिसकी वजह से वो इंटरव्यू क्रैक भी हो सकता है। तो आप जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओ या फिर इंटरव्यू के लिए जाओ,
या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, तो आप कोई डील क्रैक करने के लिए जा रहे हो, तो आप ये कलर ट्राई कीजिए, तो वो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। अगर मैं फ्रेंडली डे की बात करूंगा, तो थर्सडे एंड वेडनेसडे, ये दो कलर्स आपके लिए, सॉरी, ये दो डेज आपके लिए फेवरेबल है। आप इन दो डेज को कंसिडर कर सकते हो, जो भी कोई नई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इन दो दिनों को कंसिडर करके आप वो नई चीज स्टार्ट कर कीजिए। अगर मैं आपके आने वाले 5 साल की बात करूं, तो जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ 2025 के अकॉर्डिंग आपका अभी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। तो इस ईयर के बारे में अगर मैं बताऊंगा, तो इस ईयर में आपके जो भी रुके हुए काम है वो बनते दिखेंगे आपको। आप जॉब में हो तो आपको जॉब में प्रमोशंस मिल सकता है। आप नया व्हीकल, नया घर खरीदने का भी आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। अगर मैं पर्सनल ईयर 2 के बारे में बताऊंगा, तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का साल रहेगा। इस साल में आप प्लानिंग कीजिए, ना कि कोई नया काम स्टार्ट करिए। पर्सनल ईयर 3 के बारे में बात करूंगा मैं, तो जो भी आपने पर्सनल ईयर 2 में प्लानिंग की है, वो आप उसको पर्सनल ईयर 3 में यूटिलाइज कीजिए, एंड फिर वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे देगा। एंड अगर मैं आपको अ, इसमें सिर्फ आपको एक ही, अगर मैं आपको इष्ट देव के बारे में बताऊंगा, तो आप जो है लॉर्ड शिवा को आपका आराध्य मान सकते हो। बट जैसे मुझे पता है आप अलग रिलीजन से हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड मैं आपको रेमेडी के बारे में अगर बताऊंगा, तो अगर आपको ये लगता है आपको आपके रिलेशनशिप विथ वाइफ के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए। एंड जो मैं आपकी ग्रिड में देख पा रहा हूँ 7 की एक्सेसिव एनर्जी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केतु यंत्र का यूज कीजिए, जिसका इम्पैक्ट आपको जो 7 की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको केतु यंत्र सिर्फ एक ही रेमेडी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, एंड दैट्स इट। ओवर टू यू अभिजीत जी। फर्स्ट तो हमें आपकी चाहिए रिव्यू। I'm actually looking at the report and that's fantastic. बहुत डिटेल में और बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ की गई है। नाम 10 मिनट लगे सिर्फ रीड करने को, समझने के हाँ लिए। हाँ, एक्चुअली सच में। बहुत एंड कैलकुलेटिव वे इतना, में बना है। हाँ, एंड बहुत बहुत कलरफुल। प्रोफेशनल वे में बनाया है, सच में। And that read is very great because of the great report handed over to Vinayak ji. And of course, Vinayak ji, if I have to rate you, देखो अब यहाँ पे मैं आपको रेट करके अच्छी नहीं लगती। जो सिंपल सी वो कहते हैं ना, काला टिक्का लगा ले बेटे, नजर नहीं लगनी चाहिए मेरे लाल को। दैट वाज टू गुड। अब ये जो भी बोलना चाहें बोलें। राइट, ओवर टू यू अंजना जी। बहुत अच्छा की प्रिडिक्शन मैम, पूरा क्लियर कर दिया। वैसे भी विनायक जी जो बोलते हैं, उनके शब्द, उनके बोलने का स्टाइल ही ऐसा है कि सबको क्लियरली समझ आ जाता है। वेरी नाइस, ऑसम। अभी मैं लगा नहीं सकती ना, बिकॉज वी आर पोलर पार्ट, लाइक ही इज इन पुणे, आई एम इन पंजाब। पॉसिबल नहीं है वर्चुअल काला टिक। आप पंजाब में रहते हो मैम? यस, आई एम इन पंजाब। ओके। अभी मैं राजस्थान से ट्रैवल करके वापस आई हूँ। मैम माय पंजाब होम टाउन इज आल्सो लुधियाना, पंजाब। ओके, सो माइन इज नियर बठिंडा। ओके। रश्मिता जी इज फ्रॉम राजस्थान, राइट? आई एम फ्रॉम असम, बट मेरे हस्बैंड गुरदासपुर के हैं। गुरदासपुर, ओके, दैट इज ऑल्सो पंजाब।
मैम कुछ पूछना था मुझे। विनायक जी विनायक बहुत जी से सुंदर प्रेडिक्शन की है। विनायक जी तारीफें ले लीजिए, फिर हम डाउट क्लैरिफिकेशन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा जी किया। रजनी। जी मैम बताइए। विनायक जी बहुत अच्छे तरीके से समझाया, कुछ सीखने को भी मिला है। थैंक यू। वेरी थोड़ा सा गुड। हमारी तरह ना थोड़ा सा ऊंचा बोल लिया करो, हमें कान लगाना पड़ता है। विनायक सर का ना वो स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा क्लियर नहीं सुनता है। नाही रविवारी परत आहे. जुलै ते रविवारी प्रेझेंट करायचं. संपलं. इट वॉज गुड विनायक जी, बड़ा मजा आया सुन के आपको। और मुझे तो खैर आदत है ना, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। अभिजीत जी रिपोर्ट देख के मुझे एक्चुअली बहुत कलरफुल, बहुत प्रेजेंटेबल लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि जब विनायक जी बोल रहे थे तो आई वॉज ऑन माई फोन जस्ट लुकिंग एट योर प्रेजेंटेशन। दैट वॉज टू गुड, बहुत इम्प्रेसिव। हर चीज क्लियरली विजिबल हो रही थी और समझ में आ रही थी। एंड इन डिटेल थी मैम। अगर इन केस हमारी टीम से आपकी अच्छी वाली रिपोर्ट पढ़ने में थोड़ी सी भी कुछ कसर रहेगी तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। सॉरी सर। जी अंजना जी, आप कुछ क्वेरी हाँ बोल रहे थे। मैम ग्रिड में जैसे 2 टाइम्स 9 है या 2 टाइम 5 2 टाइम 10 वो एक्सेसिव में आएंगे। मैम 3 नंबर एनर्जीज ऐसी होती हैं जो 2 टाइम्स को एक्सेसिव कंसीडर करती हैं। 5, 7, 9 ये जब 2 टाइम होंगी तो भी एक्सेसिव कंसीडर होती हैं। और बाकी की एनर्जी जो है 1, 2, 3, 4, 6, 8, ये एनर्जी 3 या उससे ज्यादा को ज्यादा कंसीडर करते हैं। ओके मैम। और एक और पूछना था, जैसे पर्सनल ईयर हमने किसी का भी करना है तो मैम वो मेरा चैम्प शुरू हो गया था बोलना। जी मैम। ओके जो पर्सनल ईयर है जैसे जिसका तो अभी स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट मंथ से, वो तो हम वो नेक्स्ट वही गिने गए हैं जो आएगा 2025 वाला, जो दिसंबर में शुरू होने वाला है वो उसको तो हम उनका प्रेडिक्शन में प्रीवियस चल रहा है, उनका अभी जो प्रीवियस चल रहा है। उसका प्रीवियस ही बताना चाहिए। 2024 वाला चल रहा है उनका, ओके मैम। क्योंकि उनकी जब बर्थ डेट आएगी तभी चेंज होगा ना पर्सनल ईयर तो। हाँ जी हाँ जी, तो उनको वही बताना चाहिए या दोनों ही मेंशन कर देने चाहिए जो चल रहा है। नहीं नहीं, अभी जो चल रहा है वो तो दिसंबर तक वैलिड रहेगा ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ से जस्ट प्रीवियस डे तक वैलिड रहेगा। तो अभी तो प्रीवियस वाला ही बताओगे ना उनको। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो अंजना जी आप ये बोल सकते हो कि इस बर्थ डेट जो है आपका दिसंबर के बाद से आने वाला वक्त जो है दैट इज वेरी फ्रूटफुल, अगर वो पॉजिटिव है। थैंक्स। राइट, अब क्या है 2000 सॉरी दिसंबर के बाद कौन सा आ रहा है? 2026। नहीं, पर्सनल ईयर कौन सा रहा है? अच्छा वो वो देखना पड़ेगा मैम। अभी यानी कि उसका 4 चल मैम रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? अभी उनका एक मिनट अभी कौन सा चल 4 रहा है? चल रहा है। तो नेक्स्ट मैम होगा। आपने 18-12 बोला नहीं, था ना। तीन चल रहा है, 3 चल रहा है उनका पर्सनल ईयर 3 यानी 3 चल रहा है चलेगा। तो ये 3 पॉजिटिव, चलेगा। 3 चलेगा। तो अभी 2 चल रहा है तो उनको 2 चल रहा यही है। बोलना है। 2 तो देखो होता है पेशेंस वाला काम, ट्रैप ईयर होता है, इस टाइम में कुछ नया नहीं शुरू करना। तो दिसंबर तक तो उनको बोल दो डोंट गो हैड टू स्टार्ट एनीथिंग। क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ नई प्लानिंग के लिए, क्योंकि दिसंबर के बाद से वक्त बहुत पॉजिटिव शुरू होगा फॉर एंटायर ईयर। तो तब वो कुछ जो भी करना चाहते हैं नया, राइट, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज योर सन इन लॉ स्क्रिप्ट। नो माय हस्बैंड ऑन फोन कॉल। दिस इज योर सन इन लॉ स्क्रिप्ट या नो आपके? ओके, नहीं, उनकी बिकॉज़ उसकी यू तो वर मैंने वर्किंग ऑन बनाई। दैट आल्सो ना। उस उसकी मैं बनाऊंगी मैम, उसकी मैंने बनानी है। अभी तो उस लेडी की बनाई थी मैंने जो बीमार है।
विजय जी यंत्र बताए हैं इसमें हमने बुध यंत्र आएगा 5 का, 5 की एनर्जी के लिए, और मंगल यंत्र 9 की एनर्जी के लिए। ह्यूमन टच एक्टिवेशन वाला ज्यादा बेटर होता है कंपैरेटिव टू दूसरा, क्योंकि फिर माला जाप एवरीडे का टास्क रह जाता है। अभिजीत जी आपके पास पहुंचा सामान? नो मैम नॉट येट, क्योंकि 3-4 वर्किंग डेज का उन्होंने बोला था, तो लेट्स सी होपफुली बिकॉज टुमारो विल बी सन, नो संडे तो अभी बाद में है, हो सकता है यू विल गेट टुमारो, और अदरवाइज इट विल बी ऑन मंडे, राइट। और अभिजीत जी एक्चुअली देयर इज समथिंग क्लिकिंग इन माय माइंड, सो मैं आपको कुछ और भी भेजना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे पर्सनल चेक करूँ, and मैम ये that जो will be very personal. You are not going to tell to Vinayak even. ओके मैम, नो प्रॉब्लम। मैम ये जो 2 यंत्र है, बुध यंत्र और मंगल यंत्र, जी एक साथ पहनना पड़ेगा क्या? नहीं सर, एक बार में एक एनर्जी को ट्रीट करना है। तो पहले तो विजय सर ये देखना है ना कि क्या ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होना उसके लिए ज्यादा उसको हार्म दे रहा है बच्चे को, या फिर जो एक्सेसिव 5 की एनर्जी है वो थोड़ा मिसमैच हो रही है, लाइक जो हो रहा होगा पहले उसको ट्रीट करेंगे। शॉर्ट टेम्पर नहीं है इसमें मैम? गुस्सा गुस्सा नहीं है ज्यादा, तो वो नहीं शांत है, है। फिर नो छोड़ देते हैं। बुध यंत्र को दे पर देते आप एक चीज और देखना, ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, ब्लड इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन चेक करवाना बच्चे का, वो कम हो, ब्लड इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्लड से एसोसिएटेड डिजीज होती है, या फिर जल्दी से कट लग जाता है, गिरता पड़ता बहुत हो, चोट लगती हो, ब्लड क्लॉट हैं। जल्दी से। स्कूल करियर में ऐसा हुआ था मैम, हाथ तोड़े हाँ, हैं, पैर तोड़े हैं। ये 9 की एक्सेसिव एनर्जी की वजह से होता है। हम दोनों चीजें कंसीडर करेंगे ना, कि अगर हेल्थ इशू हो रहा है तो वो भी इफेक्ट ही है 9 का। तो फॉर द टाइम बीइंग आप एक बार एक यंत्रा पे जाइए, ठीक है, और वो विद इन वीक एक्टिवेशन में आ जाता है। वो क्या है, ह्यूमन टच है। द मोमेंट इट इज गोइंग टू बी एक्टिवेट हियर, 7 days का प्रोसेस होता है एक्टिवेशन का, तभी से ही वो पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है। और जैसे ही बच्चे के हाथ में आएगा, कुछ ऐसी चीज ही बन के आएगी जो उसके रेगुलर टच में रहे, तो फिर इफेक्ट जल्दी देना शुरू होता है। जब आपको लगे एक सॉर्ट हो गया, क्योंकि अभी तो पहले मेरे ख्याल से, फिर अगर हेल्थ इशू तो 9 से एसोसिएटेड आ रहे हैं, तो इसी को ट्रीट करते हैं, ओके मैम। फिर हम 5 पे जाएंगे। मैम जी मैम। जैसे 999 की एक्सेसिव एनर्जी है, 111 की है, अगर बच्चा उसकी रेमेडी नहीं करा, क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? मैम बच्चा बाहर है ना, तो एक कोरियर उसके पास जा सकता है जिसमें उसको मैम बताने वो की भी करना ही नहीं जरूरत नहीं, चाहती। उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। रजनी जी, आप एक उसको शो पीस भेज रहे हो, या आप उसको एक की चेन भेज रहे हो, ठीक है, कि इसको रेगुलर तूने यूज करना है उस पर्पस के लिए, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। अब बच्चा उस की चेन को अपने व्हीकल में डाल रहा है या किसी में भी डाल रहा है, रेगुलर टच तो कर रहा है ना। कई बार तो बिना बताए भी काम हो जाते हैं, नहीं, वो तो ताबीज साथ बना के में कार्मिक पहनाना डेप्थ नहीं है कि नंबर भी आ बच्चे को गया। पता चले। जी, तो साथ में कार्मिक डेप्थ नंबर भी आ गया। 18 खाटू श्याम जी है फिर तो अपने, हरे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। रजनी जी थोड़ा सा वेट कर लो, इस केस में 1-8 का केस ही नहीं का। एक्चुअली वो कुछ करना ही नहीं चाहती, वो कहती कि आप लोग ना नहीं नहीं, आप मुझे पागल हो ये गए हैं। बताओ रजनी जी, 1-8 वाला केस भी नहीं का और 18 वाला केस भी नहीं का, नहीं दोनों नहीं, चीज। मैं जो मैं कर हाँ रही जी हूँ मैम। मैम, जो मैंने बात किया वो सेम ही है, वो मेरी बेटी है। हाँ, क्योंकि पहले ये था कि वो एंटी मूलांक भाग्यांक वाला था बच्चा, और अब वो कार्मिक डेट वाला भी है, और इन दोनों की रेमेडी एक ही है।
तो मैंने आपको तो कुछ दिन पहले ये बोला था, बिकॉज माई डॉटर इज ऑल्सो 1 and 8। तो मैं एक रेमेडी ट्रायल वे में उस पे कर रही हूँ, क्योंकि खाटू श्याम जी का फिर वही प्रॉब्लम आ रहा था कि नहीं मानते हैं सभी। तो मैंने कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला है, एक्टिवेशन हो चुका है, यूज कर रही है वो। बट क्योंकि वो ही गए हुए थे बच्चे जिनको लेने मैं गई हुई थी आज, तो मेरी बात नहीं हुई है कि क्या पॉजिटिव लग रहा है क्या नहीं है। लेट मी ऑब्जर्व फॉर 2-3 more days एंड देन आई डिस्क्लोज इट टू यू। ठीक है, तब तक एक बार, क्योंकि जब तक मुझे इंश्योरिटी नहीं होती मैं आगे नहीं बताती। हेलो मालविंदर जी, आपने तो आज बोला था, अच्छा फिर आप मुझे भी यही बोलोगे सेम टू यू, क्योंकि सर ने ये बोला था मैं आज क्लास में नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने कहा मैं भी नहीं आ रही। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं ट्रैवलिंग मोड में ही क्लास स्टार्ट की थी। नाउ आई जस्ट रीच्ड होम एंड आई स्टार्टेड द क्लास। मैम मेरी ना एक्चुअली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं वहां से अभी जस्ट घर पहुंचा, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी हो। रियली अभी आपने मिस आई कर दी, फील बेस्ट। विनायक जी ने प्रेजेंटेशन दी थी, आपने मिस कर दी। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अभिजीत जी की वेल, प्रेजेंटेशन विनायक जी ने दी है। अब एक्चुअली क्या हुआ ना अभिजीत जी, इनके केस में मूलांक भाग्यांक 1 और 8 है, दैट इज एंटी। पहले तो वो होगा, ये इससे डेट से 1-8 जो आया वो तो ग्रेड में नॉर्मल डेट्स, नॉर्मल नंबर्स हैं। बट पावरफुल नंबर अगर एंटी होते हैं ना तो उसकी रेमेडी करनी होती है, वो भी है, देन इट्स अ कार्मिक डेट। सो दोनों चीजें और दोनों की रेमेडी एक ही है खाटू श्याम की, तो अब उसका वो लेके आ रहे हैं। वो एक्चुअली कुछ डेट्स होती हैं अभिजीत जी, दोज आर नोन एज कार्मिक्स, पिछले जन्म के कर्म। ये वाला होता है पावर का मिसयूज वाला। विजय जी आपके लिए विशेष भेज रहे हैं, मालविंदर जी आपको सब कुछ मिलेगा अभिजीत जी। ठीक है, सो ऑल डाउट्स क्लियर। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की। अब सेकंड प्रेजेंटेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सबके पर्सनल विंडो पे पहुंच गई है, सिर्फ मालविंदर जी को हमने नहीं दी क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट खुद ही चूज कर लिया था, तो वो उन्हीं के साथ जाएंगे। और बाकी सबको मिल गई है। ये प्रेजेंटेशन हम संडे को शेड्यूल कर रहे हैं एट 8, राइट विनायक जी, एट 8 PM। वी हैव जल्दी कर नथिंग ऑन लेते हैं दैट। मैम जरा। हमारा उस दिन कुछ भी और शेड्यूल नहीं है, हाँ, इवनिंग में हमारा कोई प्लान दिन नहीं का है। है, शाम का नहीं है। तो 7 कर ले, हाँ, इफ यू ऑल अलाउ। 7 कर लेते हैं प्लीज। तो क्योंकि उस दिन एक चीज नहीं है, इट विल बी योर प्रेजेंटेशंस, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट सेरेमनी है और फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग भी रहने वाला है। सो जिनको लगता है कि दे आर नॉट गुड स्पीकर, यू कैन प्रिपेयर योर स्पीच, एक्सपीरियंस शेयरिंग वाली स्पीच, बिकॉज हम छोड़ने किसी को नहीं बोल रहे हैं, राइट। अभिजीत यादव है, देखो विनायक। कोई मैम जो नहीं, उस अभी दिन जीत हमने कर प्रिडिक्शन लेंगे। करनी है उसकी भी प्रेजेंटेशन करनी है। मैम वो जैसे अभी हाँ, आप बता रहे हो ना कि आपके पास लिखा हुआ है एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, ठीक है। ये क्या होगा, इसके लिए हमारा जो प्लान है, वी आर गोइंग टू सेंड यू इन डिफरेंट ब्रेकआउट रूम्स। हमने 2 पर्सन को म्यूचुअली स्विच किया है, ठीक है। तो जब फॉर एग्जाम्पल अंजना जी आपके साथ मान लीजिए मेरी प्रेजेंटेशन है, सो वी टू आर इन अ सेपरेट जूम रूम वेयर मैं आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ, आप मुझे प्रिडिक्शन दे रहे हो, और बाकी सब कोई भी नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरह से 2-2 के पैर में सब अपने अपने ब्रेकआउट रूम में सेम टाइम पे प्रेजेंटेशन होगी। इट विल टेक लाइक हाफ एन आवर टू 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट की हम सिंगल साइड प्रेजेंटेशन मानते हैं, तो इट विल टेक दैट मच ऑफ टाइम। क्योंकि अगर हम सबकी एक साथ लेने लग गए तो इट विल बी लाइक 6 to 7 hour लॉन्ग सेशन, तो वो तो हो गया, राइट। तो अभी हम ये करें क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हमने देख ली है, सब ऑलमोस्ट सभी की कवर हो गई है आज, राइट। अब क्या है कि आप प्रिडिक्शन एक दूसरे को दे रहे हो तो सामने वाले को कितनी क्लैरिटी हो रही है, जब आप
की प्रिडिक्शन कोई और करता है, क्लैरिटी ज्यादा होती है। तो इसीलिए फिर ब्रेकआउट रूम एक्टिविटी, सो दैट योर पर्सनलाइज टाइम विद योर प्रिडिक्शनर, राइट, और आप अपने अपने रूम्स में जाके वो प्रिडिक्शन लेके और फिर मेन रूम में वापस आ सकते हैं। मेन रूम में मीनवाइल मैं, अभिजीत जी, विनायक जी और मालविंदर जी यहीं रहेंगे मालविंदर मेन सर। में जी, क्योंकि सर यहाँ पे विनायक की प्रेजेंटेशन चल रही होगी, मी एंड अभिजीत जी आर दी ऑडियंस, हम यहाँ पे एज एन ऑडियंस रहेंगे मेन रूम में, राइट। तो उस दिन विनायक जी असिस्टेंट नहीं रहेंगे, अभिजीत जी होंगे। अभिजीत जी मुझे हेल्प करेंगे, राइट अभिजीत जी, से यस, दैट्स ये ग्रेट। संडे संडे 7 PM का संडे होगा ना? स्पेशल 7 बजे कर ले मालविंदर जी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके, इट्स ओके। 7 बजे करते हैं, क्योंकि 40 मिनट का ये टाइम निकल जाएगा और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट सेरेमनी भी है, फिर तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज यही करें वाइंड अप। Vinayak ji, you are the host, so you can tell us, sir, when you are going to wind up your session, sir. नहीं, अगर सबके डाउट्स वगैरह नहीं है तो कर देते हैं। You are the boss, sir. एंड You कर दूं need to सर? decide. ओके मैम, गुड नाइट एवरीवन। Good night.